am going to discuss some important points from lines and angles. Normally we have already completed the questions from exercise 6.1, 6.2 and 6.3. But today I am going to discuss here some basic points, important points, which is not only important for class 9, it is important for your further studies also, for your higher studies also. You will get some axioms in lesson 6. Here I have written axiom 6.1. Axiom means what? In mathematics, some postulates, or you can say some statement which is accepted as true, which can be used well, some rules you can say of mathematics which can be used while solving the mathematical problem, which is accepted as true. तो कुछ एग्जियम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लोग का हायर स्टडीज के लिए भी, नॉट ओनली फॉर क्लास 9, फॉर क्लास 10, 11, 12, फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं फर्स्ट डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ एग्जाम 6.1. एंड व्हाट इट इज रिटन हियर, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. If a ray stands on a line, suppose let this AB is a line, suppose मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया AB is a line. If a ray stands on a line, suppose this is a ray, okay, suppose this point is O and this is C. Here we can say ray OC, ये जो OC जो है और ray OC stands on line AB. So if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. अगर कोई भी लाइन के ऊपर में एक रे स्टैंड कर रहा है तो दोनों एडजेसेंट एंगल जो होता है उसका साम होना चाहिए कितना, 180 डिग्री. तो एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला वन एंगल, दिस इज वन एंड अदर एंगल इज दिस वन. तो इन दोनों का साम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. दैट मीन्स व्हाट, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. इज इट, AOC एंड BOC का साम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. इसको हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे, हम लोग यहाँ पे लिखते थे इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि देखिए AOB इज ए लाइन, तो AOB जो लाइन है AOB, तो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मेजर होता है 180 डिग्री. नॉर्मली द मेजर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, और उसी के ऊपर में एक रे है OC. नॉर्मली तो दो एडजेसेंट एंगल जो है उसका साम 180 तो होना ही चाहिए. सो दिस इज एग्जाम 6.1. इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, then the sum of the two adjacent angle so formed is 180 degree. Remember, most important point. Okay, now we will discuss axiom 6.2. it is the converse of axiom 6.1. वहाँ पे लिखा था axiom 6.1 में, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angle is 180 degree. ये वाला क्या होगा, उसका कन्वर्स होगा. Why it is converse, you see here, if the sum of two adjacent angle is 180 degree. अगर दो adjacent angle का sum 180 डिग्री होता है, then the non-common arms of the angles form a line. अगर दो adjacent angle, these are the two adjacent angle, तो adjacent angle दोनों का sum अगर 180 डिग्री होता है तो ये जो है AOB, it will be a line, it will form a line. Okay, according to question, if AOC plus BOC is equal to 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल का साम 180 डिग्री होता है, then the non common arms of the angles, non common arms कौन सा है, इधर और इधर. Okay, this one OC is the common arms, these two are नॉन कॉमन आर्म्स. सो ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक क्या फॉर्म करेगा, ये एक लाइन फॉर्म करेगा. अगर इन दोनों एंगल का सम जो है 180 होता है, देन वी कैन से देयरफॉर AOB इज अ लाइन. ओके, AOB क्या होगा, एक लाइन होगा. अगर ये लाइन है तो उसका मेजर कितना होगा, 180 डिग्री, व्हिच इज ऑलरेडी गिवन. सो इट इज द कन्वर्स ऑफ axiom 6.1. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन आल्सो. Okay, it is axiom 6.3. Here you see, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. That means what, if a transversal intersect two parallel lines,
हियर आई हैव ड्रॉन टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है एंड transversal, suppose this xy is a transversal, it intersect these two parallel lines at p and q respectively। okay, दो पैरेलल लाइन है उसको ट्रांसवर्सल xy ने इंटरसेक्ट किया पॉइंट p और q में, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, इज इट, इसके साथ ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, एंगल ए क्यू एक्स इज इक्वल टू ए क्यू एक्स के साथ कौन सा इक्वल होना चाहिए, ये वाला। दैट मीन्स एंगल सी पी क्यू, सी पी क्यू। इसी तरीके से उधर देखेंगे तो एंगल बी क्यू एक्स, बी क्यू एक्स इस किसके साथ इक्वल होगा, डी पी क्यू, डी पी क्यू। दैट मीन्स दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ रिमेंबर, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज एग्जाम 6.3। तो मैं 6.4 भी यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ एक साथ में। 6.4 क्या है, 6.4 जो है इसका ऑपोजिट है। एक्सियम 6.4 इज द कन्वर्स ऑफ एक्सियम 6.3। यहाँ पे बोला था कि लाइन पैरेलल है और इंटरसेक्ट किया है ट्रांसवर्सल ने, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम 6.4 अगर कोई भी दो लाइन है, इट इज नॉट गिवन दैट वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। अभी बोला नहीं गया है कि ये पैरेलल है या नहीं है। इफ ए टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए थर्ड लाइन, ओके, अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। दैट इज द कन्वर्स ऑफ एग्जाम 6.3। हियर पैरेलल गिवन, ट्रांसवर्सल गिवन, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और अकॉर्डिंग टू एग्जाम 6.4 अगर दो लाइन को कोई एक थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहा है देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। सो दिस इज एग्जाम 6.4 व्हिच इज कन्वर्स ऑफ एग्जाम 6.3। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग इसको जब भी हम लोग लेसन 6-7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस सब चीज हम लोग को वहाँ पे यूज होगा। ओके